Good morning, children. Today in EVS, we are going to discuss Chapter 8 The Earth and the Moon. We have already discussed few topics of this chapter, like what do you mean by Earth, how much percentage of water is covered on Earth's surface, what do you mean by rotation, revolution, what all are the contents of Earth पे क्या क्या मौजूद हैं, the interior of the earth, what all are the interiors, crust, mantle and core. Again we have subdivided it also, inner core, outer core, or the upper mantle or the lower mantle. And what do you mean by moon क्या होता है, moon में light कहाँ से आती है, how do the earth gets light. A few examples also I have discussed. मैंने एक दो एक्टिविटी भी आपको एक्सप्लेन की थी. देन कंडीशंस ऑन द मून पे कंडीशंस कैसे होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कैसा रहता है, व्हाट आर मीटरॉइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेटर्स क्या होते हैं, मून की सरफेस कैसे होती है, क्या होती है वहाँ पे प्रेजेंट. Isn't it? We have already discussed. So today let's move on with the chapter, children. Let's discuss the next topic, that is movements of the moon. मून के particular movements के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay, like the earth, the moon also shows two kinds of movements. We have already discussed this. What all? Rotation and revolution. What do you mean by rotation? ये मैंने explain किया, revolution भी मैंने explain किया. So, but the time taken by the moon to rotate on its axis is equal to the time it takes to orbit the earth. What do you mean by this? The time taken by the moon to rotate on its axis. moon जो अपने axis में जो rotate करता है वो उतना ही time लगता है जितना कि it takes to orbit the earth. Clear? That is why we always see only one side of the moon. इसलिए हमें हमेशा moon का one side ही देखने को मिलता है, because the other side or the far side is always turned away from us. Now we can see it in the photographs taken from the space. See the picture over here, children. And these drawings, children, I haven't made. Some of your friends, you can say, they have made this, but the moon doesn't looks like this. Moon ki eyes, nose and lips and all, it doesn't contain. They have made the cartoon over here. So the moon, it appears like this only. जब आप एक photograph click करोगे ना from the space, okay, या फिर telescope से आप जब visible करोगे तो the moon looks like this only. Okay, now the phases of the moon, the next topic. मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं. आपने सुना होगा आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से, मम्मी पापा, isn't it? आपने सुना होगा ना फेजेस ऑफ मून. नाउ यू विल से नो मैम, इन इंग्लिश वी हैवंट हर्ड. हिंदी में आपने सुना होगा तो ये आपको याद आ जाएगा. लाइक देर आर टू, इन हिंदी दे से देर आर टू पक्ष. ओके, isn't it? The two paks, like months में हम लोग 15 days, fortnight and all we all discuss ना, like that only, children. So the phases of the moon. Moonlight is actually the light from the sun reflected off the moon's surface. As the moon orbits the earth, the relative positions of the sun, the earth and the moon keep changing. Thus, the lighted part of the moon as seen from the earth also keeps changing. जब हम अर्थ से देखते हैं ना, विजिबल करते हैं, तो हमें लगता है कि मून का कलर भी चेंज हो रहा है. यू माइट हैव सीन ऑल्सो, कभी कभी आप आपके टेरेस पे भी इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो. और समटाइम्स ऑन द रोड ऑल्सो यू कैन सी, चिल्ड्रेन. आप जिस डायरेक्शन में रोड में मूव करोगे आपको फील होता है ना कि द मून इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग विथ मी, इट इज़ ऑल्सो मूविंग विथ मी. वो मेरे साथ साथ जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में द मून इज़ ऑल्सो मूविंग. You feel sometimes like this or not? But in reality it doesn't happens the same. Reality में ऐसा नहीं होता है. Moon does not move like with us. Okay, so that is why the shape of the moon appears to change every day. वो जो रोटेट करता है ना मून, उसके रोटेशन की वजह से उसकी शेप में चेंजेस आती रहती है.
ओके। दैट्स वाई डेली आप देखोगे कि मून का शेप जो है इट डजंट अपीयर्स द सेम, कभी सिमिलर नहीं रहता है वो। ओके, द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो शेप्स चेंज हो रहे हैं ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून। सी द पिक्चर प्रोवाइडेड ओवर हियर चिल्ड्रन, इट्स गिवन वेरी ब्यूटिफुली। फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर में कितना मून विजिबल हो रहा है। सेकेंड, नाउ द वैक्सिंग गिबर्स, देन फुल मून। ओके, फुल मून आपको पूरा दिख रहा है, उसके पहले थोड़ा कम दिखता था, जो ब्लैक पार्ट विजिबल हो रहा है ना ओवर हियर इट इज नॉट। ओके, वो जो पार्ट है मून का वो हमें विजिबल नहीं हो पाता है। और लेकिन जिस दिन फुल मून रहता है, फुल मून मीन्स पूर्णिमा। ओके, हिंदी में हम उसे पूर्णिमा कहते हैं फुल मून को। आपने सुना होगा ना, लाइक आई वाज डिस्कसिंग फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, कि आज पूर्णिमा है। सो पूर्णिमा के दिन जो चांद होता है वो पूरा फुल मून रहता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद है वैनिंग गिबर्स, अगेन सी दिस मच, देन अगेन उसका साइज ये होता है, सॉरी उसका साइज डिक्रीज होता है। सी लास्ट क्वार्टर, देन वैनिंग क्रेसेंट, देन न्यू मून, after that again waxing crescent, then first quarter is visible, isn't it? So these all are the phases of the moon. moon के different phases होते हैं। अगेन व्हेन यू विल गो इन योर सीनियर क्लासेस, इसके डेप्थ में और ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मून के फेजेस होते हैं। बट नाउ इट्स रिक्वायर्ड ओनली दिस मच टू बी नोन फॉर यू पीपल। सो नाउ when the side of the moon facing the earth is not lit by the sun, see the picture provided over here, this is the moon children। देखिए क्लियर है, तो जो एरिया मून का विजिबल नहीं हो रहा है, हमें क्यों विजिबल नहीं होता, वो डार्क रहता है जो एरिया। व्हाई इट इज डार्क? when the side of the moon facing the earth is not lit by the sun, सन की जो रेज है वो मून तक डायरेक्टली नहीं टच कर पाती, जिस एरिया में वो अर्थ को डार्क दिखता है। अर्थ के ऊपर से जब आप देखोगे तो वो आपको डार्क विजिबल होगा। सो नो मून इज विजिबल, कोई मून नहीं दिखता हमें। वी कॉल इट द न्यू मून, उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून। ओके, मीन्स अमावस्या, पूर्णिमा एंड अमावस्या। ओके, सुना है ना आपने ये वर्ड्स। ग्रेजुअली सम ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून फेसेस द अर्थ एंड वी सी दैट पार्ट ऑफ द मून। तो जो पर्टिकुलर पार्ट आपके मून पे सन के जो रेज आ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो विजिबल हो रहा है लाइट, हमें बस उतना ही मून का दिखता है। ओके, so on a day when the whole side of the moon that is lit by the sun faces the earth, the whole moon appears to be illuminated, we call it the full moon। तो जिस दिन जिस दिन मून पर पूरी तरह से सन का रेज विजिबल होता है, so that particular full moon we call it as full moon। okay, now all the phases of the moon from a new moon to a full moon are known as the waxing phases of the moon। waxing means increasing, means day by day आपने देखा होगा ना मून के साइज को इंक्रीज होते हुए। फर्स्ट डे छोटा सा पार्ट है, फिर उसका साइज थोड़ा और इंक्रीज हो गया, अगैन इट इज इंक्रीज्ड एंड अगैन स्लोली द size of the moon is increased, and finally which day comes? Yes children, right now I have explained you the full moon, that is पूर्णिमा in Hindi which we call as। पूर्णिमा की दिन आती है जिस दिन पूरी तरह से चांद हमें गोल सर्कल में दिखता है, isn't it? So after the full moon, the illuminated part of the moon, फुल मून के बाद इल्यूमिनेटेड पार्ट जो रहता है वो क्या हो जाता है? सी, पहले ये फुल मून था, उसके बाद अगेन कुछ एरिया जो है वो विजिबल नहीं होता, अगेन स्लोली सी इट्स गिवन वेरी क्लियरली। इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन कि हाउ इट हैपन्स। सी ओवर हियर स्लोली व्हाट हैपन्स, उसका जो पोर्शन है ना विजिबिलिटी वाला वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जब पूरी तरह से मून विजिबल नहीं होता है, व्हाट डू वी कॉल इट एज?
न्यू मून, दैट इज अमावस्या। अब फिर से एक न्यू मून का फॉर्मेशन होगा। न्यू मून हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा वैक्सिंग होगा, वैक्सिंग फेज विल बी देयर, स्लोली स्लोली वैक्सिंग होते जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर द फुल मून द illuminated part of the moon as seen from the earth keeps decreasing and finally becomes invisible. All the phases of the moon from a full moon to a new moon are called as waning phases. वैक्सिंग फेसेस क्लियर है ना, वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड वैनिंग इज एक्सक्यूज मी, वैनिंग जो है वो क्या है, लाइटिंग होना स्टार्ट हो जाता है उसमें। लाइक एक न्यू मून होता है, न्यू मून के बाद फुल मून आता है ना, न्यू मून मीन्स अमावस्या बिल्कुल डार्क, फिर थोड़ा थोड़ा रोशनी उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेज, द विजिबिलिटी ऑफ द मून यू कैन से डिक्रीजेज एवरी डे। आफ्टर दैट व्हाट कम्स, न्यू मून के बाद क्या आता है, फुल मून, एंड अगेन फुल मून के बाद वो उसकी जो साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब डिक्रीज होती है तो वो जो फेज होता है पर्टिकुलरली, वी कॉल्ड इट एज वैनिंग फेज। Clear, children? Thus, the phases of moon appear in a cycle. It takes the moon 29.5 days to go from one new moon to next, and this period is called as lunar month. इस पर्टिकुलर पीरियड को या इस पर्टिकुलर मंथ को हम लोग क्या मंथ बोलते हैं, लूनर मंथ। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, द मून एंड टाइड्स। मून क्या होता है ये सबको अच्छे से क्लियर है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू पीपल व्हाट डू यू मीन बाय मून। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, हाई टाइड्स, लो टाइड, ये आपने सुना है ना, समुद्र देखा है आपने कभी, सी में टाइड्स आते हैं ना, लहरें आती हैं। सो दैट इज टू टाइप्स की होती है, एक हाई टाइड्स होती हैं, जब तूफान आता है ना, सुनामीज आता है, यू माइट हैव हर्ड, वार्निंग मिला है वेदर डिपार्टमेंट से कि हाई टाइड्स फॉर्म होने वाले हैं, दैट ओनली इट इज। ओके, tides are the rise and fall in the levels of the sea. During a high tide the level of the sea rises. During a low tide the level of the sea becomes low. जब लो टाइड्स है, समुद्र की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे जब होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लो टाइड्स, और जब बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, हाई टाइड्स। Now, on average, high tides occur 12 hours 24 minutes apart. जो हाई टाइड्स होते हैं ना वो कैसे अकर करते हैं, वो 12 hours 24 minutes अपार्ट रहते हैं, ऑन द एवरेज, एवरेज से ज़्यादा रहते हैं। ओके, the difference of height between a high tide and a low tide at a place is called the tidal range. टाइडल रेंज क्या होता है, जो आपके हाई टाइड और लो टाइड जो रहते हैं ना, उनमें जो डिफरेंस होती है, जो हाइट की डिफरेंस होती है, उसे हम टाइडल रेंज भी कहते हैं, कि दोनों टाइड्स के बीच में जो डिफरेंस हुई है कितनी ज़्यादा बढ़ी है या कितनी ज़्यादा कम हुई है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज टाइडल रेंज। The tidal range can be as low as less than 1 meter, or it can be as high as more than 16 meters. ये लो में 1 मीटर से भी लेस हो सकता है, और हाई जब होता है तो 16 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। Now tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun exerted on the earth. As the moon is much nearer to the earth than the sun, its gravitational pull is much more. So जो tides form होते हैं ना, high tides, it happens due to the gravitational pull of the moon, children. Clear till here? Thank you.